Welcome online lecture series. Our subject topic is wireless mobile communication. It is your final year subjects. Today our main topic is to consider the mobile generation and to see the what is the brief history of um, mobile communication. Before going in deep, now we will see what is the actual meaning of the terms which used in wireless mobile communication. It is made of three words: wireless mobile communication. The transmission between the two end users by the means of open free space. Actually, there is a no physical connection between these two end points. So wireless communication may be defined as the transmission of user information without user without the use of wires. We also see wireless term which is used in wireless mobile communication is to describe all types of devices and technologies that used in free open space for a signal propagating medium and are not connected by a wire and cable. The third point is wireless communications are provide a path to move towards a wireless world to live in a global village. To know about wireless network generation is important in studying the evolution to next generation networks, that is the first G to the 5G. Uh, the brief history of evolution of mobile communication throughout the world is useful in order to appreciate the enormous impact that radio and communication in the personal communication services, that is PCS, will have on all of us over the next several decades. As we know that wireless communication is enjoying its fast growth period in history due to enables the technologies which permit widespread deployment. Historically, historically, growth in the mobile communication field has come slowly but has been coupled closely to the technological improvement. The ability to provide wireless communication to an entire population was not even conceived until the lab laboratories developed the cellular concept in the 1960s and 1970. With the development of highly reliable miniature solid state radio frequency hardwares in 1970, the wireless communication era was born.
The recent potential growth in cellular radio and personal communication systems uh, throughout the world is directly attributed to new technologies of the 1970s, which are the mature today. Future growth of consumer-based mobile and portable communication system will be used more closely to radio spectrum location and regularly decision which affect or support new or extended service as well as to consumer needs and technologies advantages in the signal processing access and network area. Your radio mobile communication is used some few words that words indicates the information. So first is the what is a mobile. Mobile is nothing but any radio terminal that could move during the operation. And what is the subscriber? That is nothing but mobile user. The history of this mobile communication is started with radio and television communication. In 1874, Marconi to send a signal using the electromagnetic waves at a very short distance of only about 100 meters. And Marconi successfully experimented to prove that the electromagnetic waves transmission was possible between the two distinct points even though the obstacle in between. Therefore, wireless telegraphy is also known as radio communication. The word communications indicate radiated energy. After a सबसे पहले इस ब्रीफ हिस्ट्री में रेडियो एंड टेलीविज़न कम्युनिकेशन आया। अब मार्कोनी साहब ने 1874 में सिग्नल्स भेज के ये प्रूफ किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रेवल कर सकती हैं और बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस एक्सपेरिमेंट को किया गया जो सक्सेसफुली रहा। और इसके सक्सेस होने से ये बात प्रूफ हो गई कि जैसे अर्थ चूँकि हमारा कर्वेचर के फॉर्म करता है यहाँ पे, तो जिस अर्थ के कर्वेचर को अगर हम इस प्लेस से इस प्लेस के बीच में अगर सिग्नल्स भेजें, चूँकि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये तो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने पर तो कोई स्ट्रेट पाथ हमको मिलेगा ही नहीं, तो कम्युनिकेशन हमारा हो नहीं पाएगा। अगर यहाँ से भी हम ट्रांसमिट करेंगे तो ये स्पेस पास इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से करेंगे तो ये स्पेस पास इस तरह से जाएगा। तो कुछ समय के बाद ये पाया गया
कि एक एक्सपेरिमेंट के जरिए ये प्रूफ किया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आइनोस्फेयर पे रिफ्लेक्ट होती हैं। तो जब आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके ये वापस इस प्लेस पे आ सकती है, यानी कि अगर ये ए प्लेस है तो बी प्लेस पे रिफ्लेक्ट होने के बाद इनको रिफ्लेक्ट कराया जा सकता है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच में ट्रेवल किया जा सकता है। चूँकि ये रेडियो था इसीलिए इस साइंस का नाम वायरलेस टेलीग्राफी रखा गया और इसको बोला गया रेडियो कम्युनिकेशन। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया रेडियो। रेडियो का मतलब होता है रेडिएटेड एनर्जी। तो रेडिएटेड एनर्जी के बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन आया और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हमने देखा कि अपलिंक और डाउनलिंक फ्रिक्वेंसीज का यूज़ होता है और दोनों ही फ्रिक्वेंसीज जब अर्थ के स्टेशन से ऊपर सैटेलाइट में स्पेस में भेजा जाता है तो उसको अपलिंक फ्रिक्वेंसीज बोलते हैं, और जब स्पेस से अर्थ स्टेशन पे हम कोई डेटा सेंड करते हैं तो उसको हम डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी कहते हैं। इसी के ठीक बाद वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन का जन्म हुआ और वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन में जो फिनोमेनाज यूज़ हुए वो फिनोमेनाज थे हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स। सो जब हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स का यूज़ किया गया तो हमने ये पाया कि मोबाइल कम्युनिकेशंस के बीच में जब दोनों एंड पे ट्रांसमीटर रिसीवर रखा गया तो इस फॉर्म को हमने डुप्लेक्स का नाम दिया। तो डुप्लेक्स जो वर्ड यूज़ हुआ जब डिवाइस में ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों एक साथ हों, और जब फुल डुप्लेक्स की बात की कि दोनों एंड पे ट्रांसमिशन एक साथ किए जा सके, कैरी कर सकें, और दोनों एंड पे ट्रांसमिशन ना केवल रिसीव किया जाए बल्कि उसको ट्रांसमिट भी किया जा सके। तो इस तरीके से दो मोड बने डुप्लेक्स के, एक कहलाया फ्रिक्वेंसी डिवीज़न डुप्लेक्स और दूसरा कहलाया टाइम डिवीज़न डुप्लेक्स। फ्रिक्वेंसी डिवीज़न डुप्लेक्स में जो गैप था इन दोनों के बीच में, जो अपलिंक फ्रिक्वेंसी और डाउनलिंक फ्रिक्वेंसीज के बीच में, वो फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मेथड पे डिपेंड करता था। और टाइम डिवीज़न डुप्लेक्स में जो गैप था अपलिंक और डाउनलिंक फ्रिक्वेंसीज के बीच में, वो एक फिक्स टाइम स्लॉट्स के बीच में था। तो जब हम फ्रिक्वेंसी डिवीज़न डुप्लेक्स का यूज़ करते थे तो हम फ्रिक्वेंसीज को एक पर्टिकुलर बैंड में फ्रिक्वेंसीज का डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के लिए या सेम फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट मोबाइल यूजर्स के लिए यूज़ कर सकते थे। इसमें एक फिक्स टाइम स्लॉट में ही हमको सिंगल फ्रिक्वेंसीज का ही यूटिलाइज करना पड़ता है। ये टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्स में ये काम होता है। इस जनरेशन से हमने देखा कि 1946 में सेलुलर कम्युनिकेशंस की नींव पड़ी, और 1946 में जब सेलुलर कम्युनिकेशन 1946 में बेल लेबोरेटरीज ने, जो कि अमेरिकन कमर्शियल मोबाइल रेडियो टेलीफोनी सर्विस प्राइवेट कस्टमर के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और इसके बाद में ही जो ट्रांसमीटर था, जो सेंट्रल ट्रांसमीटर था, वो एक एंटीना के जरिए ट्रांसमिट करके डिफरेंट मोबाइल यूजर्स को लिमिटेड पावर्स दे के, ट्रांसमीटर पावर दे के स्मॉलर रिसीवर एंटीनास को बिल्डिंग्स के टॉप पे रखते हुए और स्मॉलर सिटीज़ को स्मॉलर सेल्स में डिवाइड करके हर एक सेल के सेंटर पे हमने एक टावर रखा और पूरे एरिया को कवर किया। और जो कन्वर्जन हुआ इस एरिया से, तो जो ट्रांसमिशन हुआ कि हम एक ही फ्रिक्वेंसीज़ को, जो मूविंग हमारा यूज़र है उसको हम फ्रिक्वेंसीज़ दे सकते हैं, और उस जो सेल्स बन रहे हैं उसमें डिफरेंट
फ्रिक्वेंसीज रखी जा सकती हैं। तो नियर आसपास जितने भी सेल्स हैं उनमें हम सेम फ्रिक्वेंसी रखें, बीच में अगर डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हो तो जब यूज़र अगर मूव करे तो उसके बीच में जो कॉल का जो ड्रॉप हो रहा है वो ना होने पाए। इसी कॉन्सेप्ट को हमने कहा फ्रीक्वेंसी रीयूज्ड। तो द फर्स्ट मॉडर्न सेलुलर टेलीफोन 1980s में जब यूज़ हुआ तो उस समय 666 चैनल्स थे, और तब हम जो सर्विस यूज़ कर रहे थे वो थी हमारी एडवांस मोबाइल फ़ोन सर्विस AMPS। तो AMPS का यूज़ करके हमने देखा कि जो हम सर्विस यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हमारी जो सर्विस आ रही है वो हमारे लिए फर्स्ट जनरेशन का काम की। और उस फर्स्ट जनरेशन में हमने पाया कि डिफरेंट यूज़र्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एनालॉग कम्युनिकेशन हो रहा है, और एनालॉग कम्युनिकेशन का जो पीरियड था वो था 1980 से 1990 के बीच में। ये 10 साल के पीरियड का स्लॉट्स होता है जो एक एक जनरेशन को बताता है। ऐसे ही सेकंड जी का जो जनरेशन होगा 1990 से 2000 के बीच में होगा। ऐसे ही थर्ड जनरेशन जो होगा 2000 से 2010 के बीच में होगा, और फोर्थ जनरेशन जो होगा 2010 से 2020 के बीच में होगा, और जो फिफ्थ जनरेशन होगा 2020 से 2030 के बीच में होगा। और इसको जो हम डिवाइड करेंगे टाइम और डेटा रेट के बीच में अगर हम देखें तो इनिशियली जो डेटा रेट हमको मिला था 0.1 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, जो कि फर्स्ट जनरेशन में बहुत कम था। अगर हम देखें 2G में भी कोई खास डेटा रेट हमको प्राप्त नहीं था। 3G में ये डेटा रेट 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड हुआ, 4G में ये 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड हो गया। लेकिन 5G में जो रिकमेंडेड जो डेटा रेट है वो है 1000 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, नियर अबाउट टू 1 टेराबाइट्स। अगर जनरेशन को क्लासिफाइड किया जाए वायरलेस नेटवर्क के फॉर्म में तो हम देखेंगे कि जो पहला जनरेशन था वो बेसिकली एनालॉग होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ वॉइस सर्विस को ही प्रोवाइड करता था, और जो इसके प्रोटोकॉल्स थे वो प्रोटोकॉल्स एनालॉग बेस्ड प्रोटोकॉल्स थे। सेकंड जनरेशन का जो डिज़ाइन था ऑब्वियसली वो वॉइस का था। चूँकि इस फर्स्ट जनरेशन में वॉइस की क्वालिटी बहुत पुअर थी तो सेकंड जनरेशन में वॉइस की क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया, और इम्प्रूव किया गया कवरेज एरिया और उसकी कैपेसिटी को, और स्टैंडर्डाइजेशन किया गया एनालॉग को डिजिटल में। तो सेकंड जनरेशन फुल्ली डिजिटल सिस्टम पे बेस्ड था, डिजिटली था, डिजिटलाइज किया गया, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो CDMA यूज़ की गई, जबकि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी वो FDMA यूज़ किया गया था। इसी दौरान इसमें यूरोप में GSM का जन्म हुआ, और GSM के आने से 2G से 3G में एक बूस्ट, एक तरीके का होड़ लग गया कि GSM से मल्टीमीडिया टेक्स्ट और इंटरनेट में एक तरह से नया उछाल आया, और इसी दौरान पे GPRS के आने से मोबाइल ब्रॉडबैंड्स भी प्रोवाइड हो गए, और डिज़ाइन होने लगे वॉइस के साथ साथ डेटा को भी कंसीडर किया जाने लगा। 4G में हमारी डिमांड हायर डेटा रेट्स की हुई, तो प्राइमरी जो हमने सिस्टम्स बनाए वो हायर डेटा रेट्स के लिए बनाए गए, और इस सिस्टम को हमने IP बेस्ड प्रोटोकॉल्स पे रखा। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशंस में हमने नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया, और ये टेक्नोलॉजीज़ थी फ्रिक्वेंसी डिवीज़न, मल्टीपल एक्सेस और मिमोस, जिसकी वजह से मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज में डिवाइड करने पे हमने मल्टीपल कनेक्शंस के जरिए हायर डेटा रेट्स को अचीव किया। अगर हम देखें कि हमारे जो इन्वेंशंस या जो भी हमारे
सिस्टम्स मार्कोनी साहब ने दिए हमको वायरलेस टेलीग्राफी या रेडियो कम्युनिकेशन के ज़रिए। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राफिक सिग्नल्स ही सेंड कर सकते थे। लेकिन जब फर्स्ट पब्लिक मोबाइल फ़ोन जो कि कार बेस्ड मोबाइल सिस्टम था और इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1946 में बेल लेबोरेटरीज के ज़रिए, और ये एक प्राइवेट कस्टमर के लिए लाया गया, तो इसमें जो यूज़ किया गया वो एनालॉग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज़ किया गया। इसमें हाई पावर के बेस स्टेशन टावर्स बनाए गए जो अराउंड 50 माइल्स रेडियस को कवर करते थे, और स्पेक्ट्रम जो वॉइस कनेक्शन था वो 120 किलो स्पेक्ट्रम में था, दिया जाता था। आगे जाके इसका इम्प्रूवमेंट किया गया मोबाइल टेलीफोन सिस्टम IMPS में। तो मोबाइल टेलीफोन सिस्टम में जब आया तो ये इम्प्रूव मोबाइल टेलीफोन सर्विस बना, और इसको 1960s में हम लेके आए, और इसके अंदर हमने फुल डुप्लेक्स सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट देखा, डायरेक्ट डायलिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाने लगी। अब उपभोक्ता या यूज़र या सब्सक्राइबर, जो यूज़र है मोबाइल यूज़र है, वो डायरेक्ट अपने कॉन्टैक्ट को मोबाइल का डायल करके सर्विस यूज़ कर सकता है। इसमें 23 FM चैनल्स दिए गए, इसकी बैंडविड्थ रिड्यूस हुई जो कि 30 किलोहर्ट्ज़ थी, इसमें 25 और 30 के बीच में रखा गया। सेरल कॉन्सेप्ट को इसमें अडॉप्ट किया गया, और जो एटोनेशन है, जो रेडियो सिग्नल्स में एटोनेट हो रहे थे सिग्नल्स, एक डिस्टेंस के बाद ट्रेवल करने के बाद जो डिग्रेशन हो रहा था उसको अचीव करने के लिए फ्रीक्वेंसी रीयूज्ड कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया। और ओरिजिनली इसको DH रिंग ने 1947 में ही प्रपोज किया था। अब बेल लेबोरेटरीज ने इस पे वर्क किया और सेलुलर टेलीफोन सिस्टम 1960s में प्रपोज कर दिया। 1960s के बाद जब हम मूव करें 2G से 3G के बीच में, तो हमारे बीच में एक नया जनरेशन बीच में पड़ा 2.5G। 2.5G टेलीफोनी का एक हाईली सक्सेसफुल पीरियड था। इसमें डेटा सर्विस इन्हांसमेंट हुई क्योंकि हाई स्पीड पैकेट डेटा इसमें हमको उपलब्ध होने लगे, जिसकी वजह से GSM और HS GPRS ने मिलके स्टैंडर्डाइज किया IS-95 को IS-95B में। पैरेलली एक नया कंपटीशन में उतारा गया IS-136 जो कि AMPS में DAMPS प्लस और CDPD के नाम से आया। इसने डेटा रेट को न केवल इंक्रीज़ किया बल्कि मल्टीमीडिया जो ट्रैफिक था जो स्लो हो रहा था उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया। ITU ने इनिशिएट किया कि 3G की स्टैंडर्डाइजेशन जो कि इफ़र्ट होनी थी, जो कि लागू करनी थी 1992 में, उसको IMT 2000 के अंदर में हम ले आए। IMT 2000 के लाने के बाद जितने हैंडसेट थे उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत थी ताकि किसी भी दूसरे मोबाइल वेंडर्स का मोनोपोली ना चले, भले ही वो सर्विस किसी और दूसरे वेंडर्स की यूज़ कर रहे हो। तो उनको ये रिकमेंड कर दिया गया कि आप अपने हैंडसेट के जो अपडेट्स हैं वो रेगुलरली प्रोवाइड करते रहेंगे। IMT 2000 के बाद जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम थी जो फर्स्ट जी की थी, चूँकि सेम फ्रिक्वेंसीज हम यूज़ कर रहे थे और हैंड ऑफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, जबकि माइक्रो प्रोसेसर उस समय डेवलप हो चुका था, तो रिमोट कंट्रोल RF सेंटाइजर और स्विचिंग टेक्निक की मदद से इसमें सुधार किया गया। जो फर्स्ट जी सेलुलर सिस्टम थे जिनका डिज़ाइन 1970s में हुआ था, डिप्लॉयड 10 साल के बाद अर्ली 1980s में किए गए। एनालॉग थे, 52 कंट्रोल चैनल्स थे, 790 वॉइस चैनल्स थे।
एंड ऑफ जो परफॉर्म होता था वो बेस स्टेशन और जो ऑन रिसीव्ड पावर के दौरान होता था। AMPS जो एडवांस मोबाइल जो सिस्टम था, जो कि अमेरिकन फ़ोन सर्विस थी US की, और टैक्स जो कि यूरोप की टेलीफोनी सर्विस थी। NTT जो जापान की सर्विसेज थी। C450 जो कि वेस्ट जर्मनी की सर्विस थी। NMT जो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ की सर्विस थी। पर इसमें जो मेन प्राइमरी एडवांस मोबाइल फ़ोन सर्विस ही था जो पॉपुलर था और आज भी पॉपुलर है। 2G सिस्टम में डिजिटलाइजेशन होने के बाद डिजिटल सेलुलर टेलीफोनी यूज़ हुई। जो डेटा थे हमारे वो डेटा सपोर्ट किया, और GSM जो कि एक हम कॉमन TDMA टेक्नोलॉजी यूरोप में यूज़ हो रही थी और जो क्लेम कर रही थी 3/4 ऑफ द सब्सक्राइबर वर्ल्ड वाइड, मतलब 3/4 भाग सब्सक्राइबर इस GSM ने यूरोप में एक ही झटके में छीन लिए थे। और उनका जो स्टैंडर्डाइजेशन था वो IS-54 और उससे की पैरेलल IS-136। सो द TDMA टेक्नोलॉजी इन US कंपेटिबल जो हुई AMPS में। और IS-95, इन दोनों में अंतर क्या है कि IS-54 ये TDMA टेक्नोलॉजीज में यूज़ होता था और IS-136 जो कि AMPS के लिए था। और IS-95 ये CDMA था और ये 1993 में हांगकांग में डिप्लॉयड हुआ, US में, और US में 1996 में हुआ, और साउथ अफ्रीका में ये डिप्लॉयड हुआ 1993 में। चूँकि 3G में ही IMT 2000 डेवलप किया गया था और इम्पोज किया गया इसको, तो इसके लिए भी कुछ 3G स्टैंडर्ड्स लगाए गए। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट था, एज टेक्नोलॉजी लाई गई और डेटा रेट जो रखा गया 473 किलोबाइट्स पर सेकेंड, और जो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी थी GSM प्लस IS-136 की, वो एच टेक्नोलॉजीज में यूज़ हुई। एच IMT 2000, एच के बाद आया CDMA 2000 जिसको क्वाड कॉम बोलते हैं। इसका डेटा रेट मच हायर था, 2 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी विद IS-95। फिर WCDMA आया जो कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी थी। इस टेक्नोलॉजी ने 5 मेगाहर्ट्ज के चैनल स्ट्रक्चर्स को प्रपोज किया और डेटा रेट इसका सेम वही था, 2 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। चाइना लेके आया अपना स्टैंडर्ड TD-SCDMA, और इसमें CDMA टाइम डुप्लेक्स, टाइम डिवीजन डुप्लेक्स फैशन में यूज़ किया जाने लगा। 3G की कुछ प्रॉब्लम थी, ये इमेच्योर था। 3G लाइसेंस एडक्शन में इंक्रीज, पैसे इसमें ज़्यादा खर्च होते थे और फाइनेंशियली इसमें बर्डन पड़ता था, डिफ़िकल्ट था हायर डेटा रेट्स को एक्सटेंड करने में। एक बार जो हायर डेटा रेट मिला उससे ऊपर नहीं मिल पाता था, और इसके स्टैंडर्ड जो थे ये डोमिनेट करते थे, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग थे। तो 4G में रिसर्च इनिशिएट की गई और इससे अच्छे जो रिज़ल्ट जो देने थे वो थे डेटा ओरिएंटेड सीमलेस इंटीग्रेटेड वायर लाइन। तो जो इंडोर डेटा रेट था वो तो इंक्रीज कर गया, बूस्ट कर गया, ये 1000 मेगाबाइट्स हो गया, और जो आउटडोर डेटा रेट था वो 20 मेगाबाइट्स पर सेकेंड था। ये कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन है, जिसमें वॉइस सर्विस ट्रैक, जिसमें सर्किट स्विचिंग का यूज़ हुआ, स्विचिंग टेक्निक का। दो जगह पे ये काम हुआ, एक नॉर्थन अमेरिका में, दूसरा यूरोप में। दोनों पैरेलल वर्क कर रहे थे। नॉर्थन अमेरिका का एडवांस मोबाइल
फ़ोन सर्विस चल रहा था, जबकि ई टेक्स यूरोप में था। फर्स्ट जनरेशन चूंकि एनालॉग था, सेकंड जनरेशन चूंकि डिजिटलाइज था, तो टेक्नोलॉजीज का चेंज की वजह से हुआ, जिसमें CDM में और स्टैंडर्ड IS-95 यूज़ किया गया, इसमें GSM यूज़ किया गया। थर्ड जनरेशन जो कि वाइड बैंड के लिए था, और ये वाइड बैंड IP इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के लिए था, जिसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे थे, यूरोपियन टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ हो रहे थे, और पैकेट डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस भी यूज़ किया जा रहा था। जैसे ही इन दोनों को हमने स्विचिंग टेक्निक से चेंज करके पैकेट स्विचिंग में हमने इसको डाला, तो हमने पाया कि जो डिमांड थी वॉइस प्लस डेटा, वो सर्विस उसमें प्रोवाइड की जाने लगी, और ये CDM में चेंज हो गया, CDM में 2000 में, GSM चेंज हो गया WCDM में, और चाइना का TDS CDM में एज इट इज़ रहा, और यहाँ पे PDM में पैकेट डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस टेक्निक का यूज़ किया जाने लगा। ये 4G के लिए था, और ये वायरलेस लैन के लिए था, जिसमें हमको एक फिक्स कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, और इसी में हम डेटा सर्विस को पैकेट स्विचिंग के फॉर्म में यूज़ करने लगे। तो जो ट्रेंड था पर्सनल कम्युनिकेशन, जो गोल ऑफ द मोबाइल कम्युनिकेशन था, ऑल टाइप ऑफ जो IP बेस्ड जो होते हैं स्टैंडर्ड्स, वो IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो पैकेट स्विच में होते हैं, और जो सिर्फ ईमेल के लिए यूज़ होते हैं वो IPv4 होते हैं। फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म होने की वजह से इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस सिस्टम्स को कंबाइंड करके डिफरेंट वायरलेस एक्सेस सिस्टम के लिए यूज़ होने लगा। इसमें एक नया फीचर्स आए, हॉटस्पॉट्स सर्विस का इंडक्शन हुआ, हाई स्पीड वायरलेस एक्सेस जो कि लेस देन 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड पे, हायर सिस्टम कैपेसिटी दी गई, 5 से 10 टाइम्स हायर देन जो G था, हायर ट्रांसमिशन डेटा रेट था, हायर फ्रिक्वेंसी एफिशिएंसी थी, मोर एडवांस मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस थे, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस थी, रिलाइज हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन था, ग्लोबल कवरेज था, और ग्लोबल रूमिंग थी।